Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha, welcome to Veda Janani. Narayaniyam, Dashakam 65, Gopi Janakladanam, and the beginning of Rasha Leela. Vrittam Vasanta Tilakam. Dashakam 65 is called Gopi Janakladanam, the joy of the gopis. It describes the beginning of the Rasa Leela, where Krishna plays his flute in the forest on a moonlight night, and the gopis, that is, the cowherd girls, are drawn to him by the divine music. Let's first see the meanings of all the shlokas, English meanings followed by Tamil meanings. Hey Krishna, one beautiful autumn night, seeing the full moon rising and the forest filled with flowers, you decided to play your flute to give joy to the Gopikas. When the Gopikas heard the sweet and soulful music from your flute, they became so enchanted that they dropped everything what they were doing and rushed towards you in the forest. Some Gopikas left their housework halfway, some left their meals, and others even left their crying babies. Their love for you was so strong that nothing could stop them. Some were dressed perfectly, while others in a hurry put their jewelry on the wrong parts of their bodies. They didn't care about their appearance, but they only wanted to be with you. A few Gopikas were stopped by their families and got locked inside their houses. Unable to live physically, they closed their eyes and reached you through deep meditation in their hearts. When all the Gopikas finally reached you, you jokingly asked them, "Why have you come to this dangerous forest at night? You should go back to your families." Hearing your words, the Gopikas were heartbroken and began to cry. They told you that they had left everything for your sake and begged not to send them away. Seeing their pure and selfless love, you felt great compassion. You then began to play and dance with them on the banks of the Yamuna River, making them the happiest souls in the world. While you were playing with them, the gopis started to feel proud that the Lord of the universe was giving them such an attention. To make them humble, you suddenly disappeared from their sight. The Gopikas were devastated when they couldn't find you and began to search for you everywhere in the forest. Hey Krishna, you who gives such bliss to your devotees, please cure my illness also. 65வது தசகம் கோபி ஜனக்லாதனம், அதாவது கோபியரின் ஆனந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ராசலீலையின் தொடக்கத்தை விவரிக்கின்றது. இதில் நிலவொளி வீசும் ஒரு இரவில் காட்டில் கிருஷ்ணர் தனது புல்லாங்குழலை வாசிக்கின்றார். அந்த திவ்ய இசையால் ஈர்க்கப்பட்ட கோபியர்கள் அவரை நோக்கி விரைகின்றனர். ஒரு அழகான நில ஒளியில் கிருஷ்ணா காட்டில் குழலூதி கோபியர்களை வரவழைத்தாய். உன் குழல் இசையை கேட்டதும் கோபியர்கள் வேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு உன்னிடம் ஓடி வந்தார்கள். சிலர் குழந்தையை விட்டுவிட்டு வந்தனர், சிலர் சமையலை விட்டுவிட்டு வந்தனர். உன்மேல் எவ்வளவு அன்பு அவர்களுக்கு கிருஷ்ணா! அவசரத்தில் நகைகளை மாற்றி அணிந்து கொண்டு கூட உன்னை தேடி ஓடி வந்தனர். வீட்டில் பூட்டில் வைக்கப்பட்டவர்கள் மனதாலேயே உன்னை நினைந்து அடைந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் வந்ததும், நீ விளையாட்டாக என்ன கேட்டாய்? ஏன் வந்தீர்கள்? அதுவும் காட்டிற்கு வராதீர்கள், வீட்டிற்கு போங்கள் என்று கூறினாய். உன்னை பிரிய முடியாமல் அவர்கள் அழுதார்கள். அவர்களின் உண்மையான அன்பை கண்டு நீ மகிழ்ந்தாய் கிருஷ்ணா. அவர்கள் வருத்தத்தை போக்க அவர்களுடன் சேர்ந்து யமுனை ஆற்றங்கரையில் விளையாடினாய்.
நீ அவர்களுடன் இருந்ததால் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தலைஜனம் வந்தது. அதை நீக்க திடீரென்று மறைந்து போனாய். உன்னை காணாமல் அவர்கள் வருந்தி தேடினார்கள். பக்தர்களுக்கு அருள் செய்யும் குருவாயூரப்பா, என் துயரம் கூட போக்குவாயாக. Let's chant the Dasaka slowly twice. गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः। सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते। गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः। सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृतासे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते। सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम्। त्वत्वेणुनादम् उपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहम् आपुः। सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम्। त्वद्वेणुनादम् उपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहम् आपुः। तागेह कृत्य निरतास्तनय प्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोहुराक्ष्यः। सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः। तागेह कृत्य निरतास्तनय प्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः। सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः। काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणम् आदधाना वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः। त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुरुचिरे तव लोचनाय। काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणम् आदधाना वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः। त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुरुचिरे तव लोचनाय। हारं निदम्ब भुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च खण्डभुवि देव समागता त्वाम्। हारित्वम् आत्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात्। हारं नितम्ब भुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च खण्डभुवि देव समागता त्वाम्। हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात्। काचित् कुचे पुनरसज्जित कञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा। त्वाम् आययौ निरुपम प्रणयाति भार राज्याभिषेक विधये कलशीधरेव। काचित् कुचे पुनरसज्जित कञ्चुलीका
व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणाम् त्वाम् आययौ निरुपमप्रणयाति भार राज्याभिषेकविदये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुम् अपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् त्वाम् आविशन् परमिमाननुधन्य धन्याः काश्चित् गृहात् किल निरेतुम् अपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् त्वाम् आविशन् परमिमाननुधन्य धन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गता परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गता परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिर्मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वम् अवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्यहर मे पवनेशरोगान् अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिर्मुग्धस्मितार्द्रवदन करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वम् अवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्यहर मे पवनेशरोगान् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः. Let's chant the shloka fully in the medium speed. गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरळिकां यमुना वनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदितः स्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहम् आपुः तागेह कृत्य निरतास्तनय प्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोहुराक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणम् आदधाना वेणुप्रणादम् उपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुरुचुरे तव लोचनाय हारं नितम्ब भुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वाम् हारित्वम् आत्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यम् व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात्
काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वाम् आययौ निरुपमप्रणयातिभार राज्याभिषेकविदये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुम् अपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकम् त्वाम् आविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गता परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिर्मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निःसीमकान्तिजलधिस्त्वम् अवेक्ष्यमानो विश्वैकहृद्यहर मे पवनेशरोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.